حقیقت پر مبنی ایک بہن کی سچی کہانی۔ 7 سال قبل آج میری پہلی رات تھی۔ بستر پہ پھول سجائے گئے تھے۔ میری شادی دور پڑے کے ایک رشتہ دار کامران کے ساتھ ہوئی تھی۔ شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ میں بیڈ پہ بیٹھی تھی، کیمرہ مین تصاویر بنا رہا تھا۔ میں کبھی دائیں سر کر رہی، کبھی بائیں طرف، اور مجھے شدید کوفت ہو رہی تھی کیونکہ میں شادی سے پہلے پردہ کی مکمل پابند تھی، لیکن خاموش بیٹھی رہی کہ کہیں پہلے ہی دن بدمزگی نہ ہو جائے۔ سب لوگ نئے تھے، ہر چہرہ اجنبی تھا۔ کامران پاس بیٹھا تھا۔ سب محلے والے مجھے دیکھنے آئے ہوئے تھے اور میری نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ رات کے 12 بج گئے تھے۔ میں بہت تھک چکی تھی، بھوک سے برا حال تھا۔ سب چلے گئے، دروازہ بند ہوا۔ کامران میرے پاس آ کر بیٹھے۔ آپ ایسا کریں، چینج کر لیں، تھک گئی ہوں گی۔ پہلا فقرہ محبت اور اپنائیت سے لبریز تھا۔ میں نے ڈریس چینج کیا۔ بھوک سے میری حالت غیر ہو رہی تھی، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ کامران کو میری تھکن سے کیا واسطہ تھا؟ وہ محبت بڑی باتیں کرے گا۔ یہ میری غلط فہمی جلد دور ہو گئی۔ وہ اپنی مردانگی کا رعب ڈالتے ہوئے بولا، دیکھو، مجھے تماشے اچھے نہیں لگتے۔ میری باتیں کان کھول کر سن لو۔ میں بار بار یہ باتیں نہیں بولوں گا۔ گھر کے سارے کام تمہارے ذمہ ہیں، کھانا بنانے سے لے کر جھاڑو صفائی تک۔ سن رہی ہو نا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کوئی گفٹ دے گا، کوئی محبت بڑی باتیں کرے گا، لیکن اس کو مجھ سے کام کروانے کی فکر تھی۔ شادی کے دن گزر گئے۔ میں ہاتھ میں جھاڑو اور مقدر میں کچن لکھ دیا گیا۔ میری جٹھانی کامران کی امی کی بھانجی تھی، لیکن میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں بنتا تھا۔ میں ان کے لیے تقریباً غیر ہی تھی، لہٰذا کھانا بنانا، صفائی کرنا، کپڑے برتن، سب کام میرے ذمہ تھے۔ جب تھک کر ٹوٹ جاتی تو رات کو شوہر کے نخرے اٹھانا بھی ضروری ہوتا تھا۔ کامران بہت رکھے ہوئے لہجے میں بات کرتا تھا۔ ایک دن رات کو کھانے کے بعد میں کامران کے پاس بیٹھ گئی۔ کامران، شادی کو 3 مہینے گزر گئے، آپ مجھے کہیں گھمانے لے کر نہیں گئے؟ کامران مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے بولا، گھمانے مطلب؟ کہاں جانا ہے تم نے؟ اس نے اتنے روکھے لہجے اور غصے میں پوچھا کہ میں سہم سی گئی۔ کامران، آپ کو اتنے غصے سے کیوں بات کرتے ہیں؟ کامران ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا، تم فی الحال میرے کپڑے استری کرو، دماغ خراب نہ کرو یار، میں سارے دن کا تھکا ہوا ہوں۔ میں اس کے پیروں کی طرف بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، اچھا چلیں آپ لیٹ جائیں، میں آپ کو دبا دیتی ہوں۔ کامران لیٹ گیا۔ میں کامران کے پاؤں دبانے لگی۔ کامران سو گیا تھا۔ میں کامران کے پیروں کو اپنی گود میں رکھ کر دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، کامران، میں نے شادی سے پہلے بہت دکھ دیکھے ہیں، مجھے محبت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ کو میری آنکھوں سے میرا درد سمجھ نہیں پاتے۔ اصل میں میری ماں نہیں تھی۔ جب میں 5 سال کی تھی تو ان کی وفات ہو گئی تھی۔ ابا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ سوتیلی ماں کے ہوتے ہوئے بھی پلی بڑی اور جوان ہوئی۔ سوتیلی مائیں کیا سلوک کرتی ہیں، یہ مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے بہت ظلم سہا تھا سوتیلی ماں کے ہاتھوں۔ یہاں ایک ظلم یہ بھی تو کیا گیا تھا، میری عمر 20 سال کی تھی اور کامران 36 سال کا تھا۔ جیسے مجھ سے میرے ابا اور سوتیلی ماں نے جان چھڑائی تھی۔ میں کامران کے قدموں کے ساتھ لپٹی ہوئی اپنے ہم سفر سے احساس کی بھیک مانگ رہی تھی۔ نہ جانے روتے سسکتے ساری رات گزر گئی، جس کا احساس صبح کی اذان سن کر ہوا۔ میں اکثر فجر کی نماز سے پہلے جاگ جاتی تھی، کیونکہ سب کے لیے ناشتہ بنانا میرے ذمہ تھا۔ میں نے کامران کی طرف دیکھا تو وہ خراٹے مارتے ہوئے گہری نیند میں غرق تھا۔ میں خاموشی سے اٹھی، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی۔ میری ایک عادت تھی کہ اپنا دکھ، اپنا درد کسی پہ عیاں نہ ہونے دیتی تھی۔ اکثر کبھی تھکن کی وجہ سے
बर्तन ना धो सकती या झाड़ू टाइम पे ना लगा पाती तो मेरी सास लाखों बातें सुनाती और तंजो तनकीद के ऐसे नश्तर बरसाती कि तकलीफ़ की शिद्दत से कलेजा तक छलनी हो जाता। मैं अपने लबों को सी कर हर ताना बर्दाश्त करती जाती। एक दिन मैंने कामरान को कदरे खुशगवार मूड में देखा तो मैंने इससे कहा, कामरान मुझे हर महीने 5,000 दे दिया करें ना। कामरान ने जहर आलूद निगाहों से मेरी तरफ देखा। खैर है ना, 5,000 क्यों चाहिए तुमको? मैंने प्यार से और समझाते हुए जवाब दिया, कामरान मैं आपकी औरत हूँ ना, मेरी ज़रूरियात होती हैं। पैसे पास हों तो कभी बाज़ार जाऊँ तो अपने लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें ख़रीद लिया करूँगी। मैंने मज़ीद समझाने की कोशिश की कि अब मैं आपके भाई से तो ये बातें कह नहीं सकती कि मेरी ज़रूरतें हैं। कामरान को मेरे प्यार बड़े अंदाज में बात करने से न जाने क्यों एक चिढ़ सी थी। इसने गुस्से से गरज कर कहा, देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हें अलग से दे सकूं। जो चाहिए अम्मी से कह दिया करो, वो ला दिया करेंगी। अलग से खर्चा चाहिए तुम्हें, तुम नवाबजादी। मैं खामोशी से सहम कर दूसरे कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी और मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ा कर कहती जा रही थी, कामरान आप मुझे कुछ भी ना दें, मैं आपके साथ हमेशा खुश रहूँगी। मुझे बस आपसे मोहब्बत है, मोहब्बत से मुझसे बात कर लिया करें, मेरा नाम प्यार से पुकारा करें। कसम खुदा की कि मैं सब कुछ भूल जाया करूँगी। दिन भर की थकन, वो पुराने दर्द सब कुछ भूल जाऊँगी। बस आप मुझे मोहब्बत से पुकारा करें। रोते रोते रात के खाना पकाने का टाइम हो गया। हस्बे मामूल कामरान समेत किसी ने कोई खबर तक न ली। हस्बे मामूल कामरान समेत किसी ने कोई खबर न ली और मैं भी रो धोकर खामोशी से खाना तैयार करने के लिए किचन में चली गई। एक दिन कामरान ने मुझे कहा, नबीला आज रात ईंटें आ जाएंगी, तुम हमारी मदद करना। ईंटें घर में फेंकनी हैं क्योंकि पुराने घर को अज़ सरनो तमीर करना था और यहाँ गांव जैसा माहौल था जहाँ औरतें इस किस्म के काम भी करती थीं। मैंने सारा दिन घर के काम किए, फिर रात को वो ईंटें उठाकर घर में फेंकने लगी। रात के 3 बज गए थे। काम ख़त्म हुआ। मेरा जिस्म दर्द और थकन से बेजान हो रहा था। कामरान कमरे में आकर लेट गया। मैं इसके पास बैठ गई। मैंने कदरे लाड से कहा, कामरान प्लीज़ मेरा सर दबा दें, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कामरान ने करवट बदली और गुस्से से चीख कर बोला, यार दफ़ा हो जाओ और पैनाडोल खा लो, मुझसे नहीं दबाया जाता। मैं खामोशी से बिस्तर पर लेट गई। न जाने क्यों आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैं मुंह पे हाथ रखे सांस रोकने की कोशिश कर रही थी कि कहीं रोने की आवाज़ सुनकर कामरान की नींद ख़राब न हो जाए। मैं दर्द की शिद्दत से सो न सकी। फजर की अजान होने लगी। इस दौरान न जाने कैसे मेरी आंख लग गई। एक शोर सा हुआ तो मेरी आंख खुली क्योंकि मेरी सास मुझ पे शदीद गुस्सा हो रही थी और गालियां दे रही थी कि देखो तो सही, अभी तक मैडम सोई हुई है, शर्म ही नहीं है, टाइम तो देखो। कामरान भी शोर सुनकर उठ बैठा और बगैर सोचे समझे मुझ पर गुस्से से चलाने लगा। शर्म है तुमको, टाइम तो देखो, अम्मी खुद नाश्ता बना रही हैं, तेरी आँख ही नहीं खुलती। मैं क्या कहती और क्या समझाती इन्हें, क्योंकि इन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। बस मैं खामोशी से किचन में चली गई। सारा काम किया। मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी और मैं शदीद दर्द और तकलीफ़ से कड़ाह रही थी। शादी को 3 साल गुजर गए। इस दौरान अल्लाह ने मुझे 2 बेटियां भी अता की, लेकिन बेटा ना होने की वजह से किसी ने भी बेटियों की पैदाइश पर खुशी का इजहार नहीं किया था। इन 3 सालों में कोई ऐसी सांस नहीं थी जब मुझे कभी सुकून हुआ हो। नए घर का काम शुरू हो गया। मुझे मज़दूरों की तरह काम पर लगा दिया गया। दिन भर सब के लिए खाना बनाती,
फिर कभी ईंटें उठा कर देती तो कभी मिट्टी उठा रही होती। 4 महीने मुसलसल काम करने के बाद घर तैयार हुआ। कामरान के साथ रहते हुए भी मैं कामरान से दूर थी। दिन की दूरी से रातों की दूरियां भी बढ़ने लगीं। एक डर सा मुझे सताने लगा। कामरान समेत सब घर वाले पहले ही मुझे बेइंतहा दुख और तकलीफ़ पहुंचाते रहते थे, लेकिन अब बेटा ना होने का ताना भी शामिल हो गया था। इन दिनों कहीं मुझसे छुपकर कामरान की दूसरी शादी की बातें होने लगीं, जो ना किसी तरह मेरे कानों तक पहुंचती रहती। मैं सबके रवैये समझ रही थी, कुछ तो गलत हो रहा था। मैं नौकरानी से बढ़कर कुछ नहीं थी। एक दिन अचानक जेठानी की छोटी बेटी ने बताया, आंटी, मामा कह रही थी कामरान चाचू की शादी करनी है, नई आंटी लेकर आनी है। मैं समझ चुकी थी कोई क़यामत टूटने वाली है। कामरान कमरे में बैठा चेहरे पर क्रीम लगा रहा था। मैं पास गई और कहा, आजकल बहुत क्रीम लगा रहे हैं, बड़े सोने लग रहे हैं आप। कामरान, आप हमेशा खुश रहें। मैं नमाज पढ़कर आपके लिए बहुत दुआएं मांगा करती हूँ। आपकी ज़िंदगी की दुआ मांगती हूँ। आपके साथ ही तो मेरा सब कुछ है। जैसे मैं एक दर्द दिल में छुपाकर खुद को समझा रही थी कि कामरान मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो टस से मस ना हुआ और कमरे से उठकर चला गया। और फिर वो दिन भी आ गया जब लड़की वाले हमारे घर आए। सास ने सख्ती से मुझे कहा, तुम खाना बनाओ और अपने कमरे में चली जाओ, सामने ना आना मनहूस। इस मौका पर मुझे सवाए खामोशी अख्तियार करने के और कुछ नहीं करना था। बस दर्द को छुपाना था, खामोशी से रोना था, क्योंकि वापस पलट कर देखती तो सौतेली माँ थी जो मुझे कभी वापस कबूल ना करती। सामने कामरान की शादी थी जो कभी भी धक्के देकर निकाल सकता था। कामरान का रिश्ता तय हुआ। कुछ ही दिनों में दूसरी बीवी को ब्याह कर ले आए। जिस कमरे में कभी कामरान के साथ मैं रहती थी, आज इस कमरे में कामरान की बाहों में कोई और था। मुझे स्टोर नुमा अलग से एक कमरा दे दिया गया था। कामरान अपनी दूसरी बीवी को मड़ी घुमाने ले गया। वो बहुत खुश था, लेकिन एक दीमक अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रही थी। घर के काम करके थकन, रात की तन्हाइयाँ, ये सब मुझे अंदर से ख़त्म कर रहे थे। कमर और टांगों में शदीद दर्द की वजह से मुझसे चलना दुश्वार हो चुका था। बस मैंने ये फ़ैसला कर लिया था कि नौकरानी बनकर मरते दम तक अपने बच्चों के साथ यही रहूँगी। घर से निकाला तो कहाँ जाऊँगी मेरा तो कोई घर भी नहीं। कामरान अपनी दुल्हन से बहुत प्यार करता था। इसे बर्गर ला कर देता, इसके साथ हर इतवार तफरीह के लिए बाहर जाता। वो मेरे पास सिर्फ उस वक्त आता जब इसकी दूसरी बीवी मेके जाती। आज मेरे इस बेनाम रिश्ते को 7 साल हो चुके थे। इस दौरान मुझे अल्लाह ने एक और बेटा भी अता किया, लेकिन कामरान और इसके घर वालों की नज़र में मेरी हैसियत एक नौकरानी से बढ़कर नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों को भी वही हैसियत दी जाती है जो मुझे दी जा रही है। मेरे बच्चे बाप के होते हुए भी बाप की शफ़क़त से महरूम हैं। इन बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें, ज़रूरतें हमेशा से दफन होती आ रही हैं। बाप के साथ घूमना खेलना तो बस बच्चों की एक हसरत ही बन चुकी है। मुझे खुद ही बच्चों की ज़रूरियात के लिए बाज़ार जाना पड़ता है। बीमारी हो या कोई भी ज़रूरत, मेरे बच्चों को बाप की तरफ से कभी प्यार और शफ़क़त नहीं मिली। खुद मेरा जिस्म बीमारियों की अमाजगाह बन चुका है। जोड़ों का दर्द, कमर के मोहरों में दर्द, शुगर और गैस और न जाने क्या क्या बीमारियां लग चुकी हैं। लेकिन इतनी अस्तात नहीं बन रही कि किसी अच्छे डॉक्टर या किसी अच्छे हॉस्पिटल में चेकअप करवा सकूं। कामरान से जब भी कहा मुझे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएं या कम से कम खर्च ही दे दें ताकि मैं अपना मुकम्मल इलाज करवा सकूं, उसकी तरफ से एक ही जवाब मिलता है कि सामने सरकारी अस्पताल में चली जाओ, वहाँ से मेडिसिन मिल जाएगी। और ये तुम औरतों के ड्रामों में अच्छी तरह समझता हूँ। समाए खामोशी के और क्या कर सकती हूँ।
सरकारी अस्पताल में जो दवाएं मिलती हैं वो तकरीबन हर बीमार को दी जा रही होती हैं। बाकी जो असल मेडिसिन होती हैं वो बाहर मेडिकल स्टोर से ही मिलती है। बस घरेलू टोटकों से गुजारा कर रही हूँ। आज सुबह से मेरी सांस रुक रही है, ऐसे लग रहा है मेरा वक्त करीब आ गया है। ये तहरीर जैसे तैसे लिखकर 3 घंटों में पूरी हुई है। मेरी ये कहानी हकीकत पर मबनी है, सिर्फ नाम और मकाम फर्जी हैं। आप लोगों से शेयर करने का सिर्फ ये मकसद है, जब किसी की बेटी को ब्याह कर लाएं तो उसके साथ नरम लहजा रखें, प्यार से बात करें और इज़्ज़त से पेश आएं। खुदा आपकी बच्चियों को भी बाइज़्ज़त बनाएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।